गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन भजन संहिता 22 1 से 2, Psalm 22 verses 1 and 2। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from my cries of my anguish? My God, I cry out by day, but you do not answer, by night, but I find no rest. आप देखें, अगर आप भजन 22 को आप कनेक्ट करें भजन 3 से, हालांकि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, और हालांकि इसका जो दाऊद के जीवन से, उसके जीवन में कोई किसी घटना से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो वचन है वो किसी के सताव का, किसी के एग्जीक्यूशन का डिस्क्राइब करता है। आप देखें, अगर आप पढ़ें भजन 22 तो वो है सफरिंग सर्वेंट। भजन 23 जो है वो है केयरिंग सर्वेंट। भजन 24 जो है वो है एग्जॉल्टेड सर्वेंट। आप देखिए, जो लैंग्वेज है बिकम्स मोर लाइक एग्जीक्यूशन। आप देखें इसको, इसका जो संबंध है लगता है यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से, जो उसने कहा था। मैथ्यू उसका 27 अध्याय 40 पद। Matthew 27 verse 46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? It's the language which Jesus Christ spoke, Aramaic. आप देखें, एलाई एलाई लमा शबक्तनी, हे मेरे प्रभु, मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप देखें, इसका जो कनेक्शन वो है इब्रानी उसका 2 अध्याय 12 पद। Hebrews chapter 2 verse 12. He says, I will declare your name to my brothers and sisters. In the assembly I will sing your praises. आप देखें, सेम कैन बी कनेक्टेड टू भजन 22 में Psalm 22 verse 22. I will declare your name to my people. In the assembly I will praise you. दाऊद मानो महसूस कर रहा, उसे परमेश्वर ने त्याग दिया है, उसे परमेश्वर ने छोड़ दिया। आप देखें, ये वर्ड हैं वो हैं एक प्रकार के शब्द हैं जहाँ पर महसूस कर रहा है यीशु मसीह कि उसे परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया है, वो उस पर टंगा हुआ है। आप देखें, मैथ्यू 27:26 में हमने पढ़ा है, लैम्ब ऑफ गॉड इज जोना chapter 1 verse 29. John 1:29 says, The next day John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Hallelujah. आप देखें, ये बात कही गई है 2 कुरिन्थियों उसके 5:21 में। 2 Corinthians chapter 5 verse 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. हम जो है उसमें यीशु मसीह की, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये बात कही गई है गलतियों 3:13 में। Galatians chapter 3 verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hung on a pole. शापित वो जन जो क्रूस पर, काट पर लटकाया जाता है। आप देखें, बात जो है भजन 22 के उसमें मिलती है। Psalm 22 verse 24. For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help.
साथ आप पढ़ लीजिए हबक्कुक उसका पहला अध्याय 13 पद। Habakkuk 1:13. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then तेरी आंखें पवित्र हैं, तो मनुष्य के जो पाप है, गुनाह है, उनको देख नहीं सकता है। Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? भजन 22:2। Bhajan 22, though, Psalm 22, verse 2. And it says, My God, I cry out but by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. आप देखिए, अगर आप इसे प्रत्येक से मिलाकर पढ़ें तो आपको ये मतलब समझ में आएगा। And it says from 1 to 5, yeah? My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of my anguish. My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. आप देखें हबक्कुक उसका पहला अध्याय 2 से 4 पदों में एक कंप्लेन है, शिकायत है। Habakkuk 1:2 to 4. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Or cry out to you violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Therefore the law is paralyzed and justice never prevails. The wicked hem in the righteous so that justice is perverted. और आप पढ़ जाए भजन 44, 24 वर्सेस 22 to 23 to 24। Psalm 44, 23 and 24. Awake, Lord, why do you sleep? Rouse yourself. Do not reject us forever. Why do you hide your face and forget our misery and oppression? इन पदों में जो है एक फ्रस्ट्रेशन है। अवेक अवेक, अपना मुंह छुपाए हुए। आप देखें, ऐसा लगता है परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया है। इन शब्दों में डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। आप देखें, दाऊद के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जो सिंबॉलिकली हो या प्रोफेटिकली हो, उसके जीवन में आगे हो। आप देखें, ये बात है मिलती है हमें भजन मत्ती 27:40 में। Matthew 27:46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? मरकुस का 15वां अध्याय 24 पद। Mark 15 verse 34 is the same thing. And at 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? भजन 22:29। Bhajan 22:29. भजन 22:22। Bhajan 22:22 says, Psalm 22:22. I will declare your name to my people. In the assembly I will praise you. आप देखें ये बात कोट की इब्रानियों 2:12 में। Hebrews 2:12. He says, I will declare your name to my brothers and sisters. In the assembly I will sing your praises. आप देखें जो प्रार्थना यीशु मसीह ने की गार्डन ऑफ गेथसेमनी में, आप देखें मिलती है हमें मत्ती 26:39 में। Matthew 26:39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, इब्रानियों 30। My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. इब्रानियों
3:7 में 5:7 में Hebrews chapter 5 verse 7. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. आप देखें यहाँ जो कुछ हो रहा है ये हमारे लिए भला है, हमारे उद्धार के लिए, फॉर आवर गुड एंड गॉड्स ग्लोरी। ये हमारे लिए भला है, परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे जीवन में अगर आप देखें नहीं लव करें, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, अपने प्राण दिए, मारा गया, गाड़ा गया और जो है वो तीसरे दिन जी उठा, आने वाला है। अगर वो नहीं होता तो यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाता, मैं और आपका छुटकारा भी नहीं होता। हमारा छुटकारा हुआ क्यों? यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। आइए फिर से एक बार परमेश्वर को महिमा दें उसकी अनंत योजनाओं के लिए। उसने हमारे जीवन में जो कार्य किए हैं, उसने हमारे जीवन में छुटकारा किया है, उद्धार का काम किया है, तो उनको धन्यवाद दें। मुझे आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे बदले अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा, जो उसने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, शापित ठहरा और जी उठा। आज जो है वो आपके पास जो है बैठा है, मध्यस्थी कर रहा है, जहाँ से वो आने वाला है। कलीसिया को, विश्वासियों को अपने साथ ले जाने वाला है। तुम्हारी प्रार्थना तुम आप में जब तक आप ना आए इस संसार में, जब बुरे लोगों के बीच में हम रहते हैं, हमें सामर्थ्य दें, हमें बचाएं। हमारी प्रार्थना है तो आप हमारे साथ, हमारी प्रार्थना को सुन लीजिएगा, यीशु नाम से मांगते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ और हमें से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन।